डैफोडिल मैम। डैफोडिल बेटा क्वाइट। इधर हम जल्दी से काम करते हैं, बाकी दो सेक्शंस भी टीचर्स प्लीज चेक कि जल्दी से ज्वाइन करें हमारे। सो प्लांट टिश्यूज की बात की थी बेटा, एक हमने काम करना था, व्हाट इज कॉर्क। कॉर्क क्या है आज हमने, वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट कॉर्क। So what happens that young tree with soft stem, ये हमने पिछली बार यंग स्टेम का स्ट्रक्चर किया था, देन इट मैच्योर्स इन ट्री with woody stem. So how this wood is formed, हम ये काम करेंगे. So last time what we had done, this is अपना पीछे वाली कॉपी देखो, एपिडर्मिस, this is hypodermis, then this is cortex. Now what happens, आगे इसके अंदर जो पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम वो है, बट सी हियर बहुत ही क्लियरली, इधर देखो, सब छोड़ दो, लीव एवरीथिंग, सी हियर. सो व्हाट हैपेंस व्हेन इट मैच्योर्स, few layers of the cortex, few outer layers of cortex differentiates, differentiate means अपना specific function छोड़कर it regains the capacity to divide, differentiates to form cork cambium. It differentiates to form cork cambium. So what happens next? That here, this is cortex. This is cortex. Some few layers of the cortex, they de-differentiates to form सनफ्लावर. एक तो लेट ज्वाइन किया, इमीडिएटली सेटल डाउन क्विकली, जल्दी से. सो आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स de-differentiates to form cork cambium. You know, cambium is meristematic tissue. जल्दी से सनफ्लावर, जल्दी से settle down quickly. Sir, good morning. So cork cambium, now it is meristematic. Obviously it will divide. It will divide to form new cells towards inner side as well as towards outer side. So the new cell formed towards inner side is secondary cortex. This is, ये जो ग्रीन कलर की है, ये नई कॉर्टेक्स बनी है.
कॉर्क कैम्बियम से बाद में बनी है, मेच्योर जब प्लांट हुआ तब बाद में बनी है, दैट्स व्हाई इट इज secondary cortex. All this is given in your NCERT, but not very clear. And then outside the cork cambium, the new cells formed is called as cork. The new cell formed, this is whole cork. पहले ध्यान से सुनना है, मैं ये डिक्टेट करवाऊंगी आपको, पहले लिसन केयरफुली. सो हियर देख रहे हैं थिक वॉल्ड सेल्स, द कॉर्क, इट हैज डेपोजिशन ऑफ सुब्रिन. ये नहीं लिख देना कि थिक है तो ये स्क्लेरेंकाइमा है, नो, दीज आर कॉर्क सेल्स, these are dead cells, these have deposition of suberin, waxy layer. It is impermeable to gases, it is impermeable मतलब इसके थ्रू ना गैसेस जाएंगी अंदर बाहर, ना पानी जाएगा. So this is cork. If the gases cannot go inside, means ये plant है, बाहर वाली साइड cork आ गया, अगर gases अंदर नहीं जाएंगी तो नीचे living cells, जो अंदर उसके living cells है, how do they breathe? Therefore, what the nature has provided, that in between cork cells, dead cells, there are thin-walled living cells, and this structure is called as, you know, lenticels. This is lent. ठीक है, तो मैं तुम्हें इसकी पोजीशन दोबारा से बता देती हूँ. ये स्टेम है, ये कॉर्क बन गई, कॉर्क के बीच बीच में लेंटिसेल्स भी है, और इसके अंदर दिस इज, ये मैं वैसे ही दिखा रही हूँ, दिस इज, यू नो, दिस इज वेस्कुलर के, सॉरी, कॉर्क कैम्बियम. इस साइड भी है, इस साइड भी है. कॉर्क कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, बाकी सब चीजें आ जाएंगी. राइट, सो राइट डाउन, in mature woody stem, in mature, write down everybody, in mature woody stem, the outer layers of the cortex, the outer layers of the cortex de-differentiates, de-differentiation का मतलब मैंने बताया आपको, de-differentiate to form cork cambium, to form cork cambium. कॉर्क, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉर्क कैम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्टम. कॉर्क कैम्बियम इज secondary meristem because it is formed by, it is formed by de-differentiation of cortex, de-differentiation of cortex. कॉर्क कैम्बियम में सेकेंडरी मेरिस्टम, बेटा जो लिखवा रही हूँ अभी लिख लो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी. रोज, सनफ्लावर, डैफोडिल, सनफ्लावर तो पहले आ गया था, डैफोडिल एंड रोज, जल्दी से.
So cork cambium is secondary meristem as it is formed by dedifferentiation of cortex. Next point. Cork cambium divides and form secondary cortex. Cork cambium divides and form secondary cambium towards inner side. Towards inner side. Cork cambium divides and forms secondary cortex towards inner side. Third point, towards outer side. Towards outer side, the cork cambium forms. The cork cambium forms cork. Cork cambium forms cork. The cells of cork. The cells of cork are first dead. Has deposition of सुब्रिन. सुब्रिन क्या है? वैक्सी सब्सटेंस. Has deposition of सुब्रिन on its walls. Third है, cork is impervious. Impervious का मतलब होता है, impervious टर्म पेपर में आ सकती है. Impervious means impermeable. Impervious means impermeable to gases and water. It is impermeable to gases and water. Therefore, in between cork cells, in between cork cells, there are present thin-walled living cells. Thin-walled, living, loosely arranged cells. Thin-walled, living, loosely arranged cells that form lenticels. That form lenticels. Through which gaseous exchange occurs. Through which gaseous exchange occurs. तो आप स्टार डाल के लिखना बेटा. In woody stems, gaseous exchange. आपने मुझे बताना है. Occurs through. Gaseous exchange occurs through dash. Yes. लोटस में yes. जो फर्स्ट बेंच पे ही मिडिल गर्ल बैठी है येलो शर्ट में, जल्दी से बेटा खड़े होके मुझे बता दो. इन वुडी स्टेम गैसियस एक्सचेंज occurs through. ये हमने ये वुडी स्टेम ही है, मतलब दिस इज वुडी स्टेम. तो इसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? इट इज लेंटिसेल्स. बिल्कुल ठीक है, इट इज लेंटिसेल्स, क्योंकि स्टोमेटा वगैरह सब टूट गए हैं. इट इज थ्रू लेंटिसेल्स. बैठो बेटा. इट्स थ्रू लेंटिसेल्स. ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया
मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट हैपेंस, दिस इज प्राइमरी स्टेम, जो यंग ग्रीन स्टेम होती है, दिस इज एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। जब जैसे प्लांट मेच्योर होता है, देयर इज अपीयरेंस ऑफ ए वुडी टिश्यू, है ना, थिक हो जाती है, वुडी टिश्यू आ जाता है। तो उसमें क्या है कि आउटर लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, जो आउटर लेयर है ना कॉर्टेक्स की, ये वाली जो लेयर्स है, 3-4 लेयर्स जो है, दे डी डिफ्रेंशिएट, वो अपना स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन भूल कर क्या करती है, दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, टू फॉर्म द कॉर्क केम्बियम। क्योंकि कॉर्क केम्बियम शुरू से मेरिस्टेमेटिक नहीं है, वो कॉर्टेक्स से बना है, दैट इज व्हाई कॉर्क केम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्ट। ठीक है। और जो कॉर्क केम्बियम है, उसने क्या किया, दिस इज, ये येलो वाला कॉर्क केम्बियम है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म सेल्स ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स आउटर साइड, टुवर्ड्स इनर साइड द सेल्स फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, टुवर्ड्स आउटर साइड द सेल्स फॉर्म कॉर्क। कॉर्क की खासियत आपको मैंने बता, राइट। सो दिस इज समथिंग अबाउट प्लांट टिश्यूज। जल्दी से अब अपनी वर्कशीट निकालिए, जल्दी से, प्लांट टिश्यूज, जल्दी, क्विक, ब्रिंग आउट योर वर्कशीट्स। लाए नहीं? क्योंकि आज पता नहीं था कि क्लास है। चलिए निकालो निकालो, जिन जिन के पास है निकालो जरा। बाकी स्टूडेंट्स जो है अपनी कॉपी में लिखो प्लांट टिश्यूज वर्कशीट, आंसर्स लिखते जाएंगे और मैं धीरे धीरे से बोलती हूँ क्वेश्चंस, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेल द आंसर्स। जिसके पास नहीं भी है वो भी कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यस, डेफोडिल, डेफोडिल बेटा माइक ऑन कीजिए, जूम से माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, यस, मिडिल रो में फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स है, राइट साइड पे, क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक यू हैव द असाइनमेंट। ठीक है, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट यू हैव? Yes, tell me, can you tell me the answer? Cell, localized and dividing cell, बिल्कुल ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकलाइज्ड, बैठो बेटा, लोकलाइज्ड मीन्स ये एक स्पेसिफिक पोजीशन पे है एंड इट हैज डिवाइडिंग सेल्स। जिनके पास वर्कशीट नहीं भी है वो अपनी कॉपी में लिखो ताकि आंसर्स आपको पता हो। दे आर लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, सनफ्लावर। यस, सनफ्लावर में बेटा जूम से माइक ऑन कीजिए, राइट साइड में जो बॉय बैठा है फर्स्ट बेंच पे विद ब्लैक शर्ट, आ जा बेटा, आई थिंक यू हैव वर्कशीट, आ जाओ वर्कशीट लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? चलो ऐसे ही बता, हाँ बोलो, जोर से बोलो। ए, have many vacuoles, मेरिस्टेमेटिक, ए ऑप्शन है, they have many vacuoles, which is incorrect, बैठो बेटा, which is incorrect because meristematic tissues don't have vacuoles. So question number 2, it is A. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बताया था कि शुगर केन जो है जब हम काटते हैं तो ये रूट है, तो हम यहां से काट के शुगर केन ले लेते हैं। या थोड़ा सा मैं कि हमने यहां से काट दिया, ये जो है शुगर केन हम रहने देते हैं, इट विल अगेन ग्रो। बट कैसे ग्रो करता है? एपिकल मेरिस्टम, जो टिप पे मेरिस्टम था वो तो हमने रिमूव कर दिया, काट दिया, तब शुगर केन कैसे ग्रो करता है, ये लंबा कैसे हो जाता है? यस, हु विल टेल मी? रोज, रोज में बेटा, यस, राइट साइड में जो लास्ट में बॉय है विद द ग्रीन शर्ट, आजा, वर्कशीट है, हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ,
कौन सी चॉइस है, ए बी सी, कौन सी है बेटा? डी ऑप्शन, इंटरकैलरी मेरिस्टम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी, बैठो बेटा, इट इज डी, शुगर केन ग्रोज विद इंटरकैलरी मेरिस्टम, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, ये अगर नोड है तो इसके ऊपर भी इंटरकैलरी मेरिस्टम, नीचे, सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लोटस, लोटस में जो बेटा राइट साइड में फर्स्ट बेंच पे बॉयज है, मिडल बॉय, आजा जल्दी से, आजा, ग्रीन शर्ट, ग्रीन शर्ट में जो लड़का है, आजा 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 आजा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो कहता है कि ये स्टेम है, ये इसकी एपिकल बड है, एपिकल शूट एपेक्स है, यहाँ पे हमने 1 मीटर हाइट पे, यहाँ पे हमने नेल लगा दी। अब जितना भी टाइम दिया है, प्लांट इतना लंबा हो गया, नेल कहां पर होगा? यस, वर्कशीट है आपके पास, नहीं है तो किसी से लो, टेक द वर्कशीट फ्रॉम समबडी। हाँ जी, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, कि ये 1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यहाँ पे नेल डाली है, तो नेल कहां पर चली जाएगी? सी ऑप्शन, रिमेन है, वाई? आंसर ठीक है सी ऑप्शन, बट वाई? यहीं पर ही रहेगी, ये आपने ठीक बताया है, 1 मीटर। क्यों? बिकॉज ग्रोथ अकर्स बाय एपेक्स, नीचे से ग्रोथ नहीं होती है, टिप से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बैठो बेटा, आंसर है सी, और इसकी ऑप्शन लिख लो, फोर्थ की आंसर है सी, और इसका रीजन लिख लो आगे, बिकॉज, बिकॉज in plants growth does not occurs from base but occurs from the tip. In plants the growth does not occur from base but it occurs by the tip, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। नेक्स्ट है रोज। हाँ जी, रोज में बेटा सर के आगे वाले बेंच पे जो रेड शर्ट में बच्चा है, आजा बेटा, वर्कशीट लेके आ, वेरी गुड। गर्थ ऑफ द स्टेम, गर्थ होता है डायामीटर, कैसे इंक्रीज होता है? कौन सा मेरिस्टम? लेटरल मेरिस्टम, वेरी गुड, बैठो बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी, गर्थ ऑफ द स्टेम, डायामीटर कैसे मोटा हो रहा है? दैट इज बाय लेटरल मेरिस्टम। बेटा सबने क्या करना है, एक फोल्डर रख लो, छोटा सा फोल्डर, प्लास्टिक का फोल्डर रख लो, और अपनी वर्कशीट्स उसी में रखा करो, एंड ब्रिंग देम डेली। ठीक है, वैसे तो आपकी क्लास जो है दैट इज ऑन थर्सडे, बट रोज ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, किसी दिन एक्स्ट्रा लग गई क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पेरेन्काइमा सेल्स, यस, सनफ्लावर, सनफ्लावर में बेटा राइट साइड में जो येलो शर्ट्स में बॉयज बैठे हैं, एक लड़का आ जाओ, तो दोनों आ जाओ, दोनों, बोथ कम, वर्कशीट है बेटा, हाँ आ जाओ, दोनों आ जाओ। पेरेन्काइमा सेल्स आर thin walled and permanent. yes, these are permanent tissues, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 and A option, parenchyma cells are thin walled and permanent, very good। मुझे ये बता दे बेटा, ये सेम बॉय, लिग्निफाइड वॉल्स किस टिश्यू में है? पता नहीं नहीं, मैं ऑप्शन देती हूँ, इधर सामने देखो, सामने देखो, पता क्यों नहीं है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, किसमें लिग्निफाइड वॉल्स है? थिक वॉल, कोई और नहीं बताएगा, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स किसमें है? इट इज नहीं बेटा, स्क्लेरेन्काइमा। दोबारा से देखो, दोनों दोनों यहीं खड़े रहना है,
पेरेन्काइमा सेल्स ये है, थिन वॉल्ड सेल्स, लिविंग सेल्स, कोई लिग्निन नहीं है। जो स्क्लेरेन्काइमा है, देखो स्क्लेरेन्काइमा कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, बहुत सारी थिक वॉल्स है, और ये थिकनिंग किसकी है बेटा? लिग्निन की है। ठीक है, जिसके पास असाइनमेंट है वहां पे जो लिग्निफाइड लिखा है ना, वहां पे लिख लो इट इज प्रेजेंट इन स्क्लेरेन्काइमा, डेड सेल्स है, याद रहेगा बेटा? ठीक है, अब दोनों में से मुझे कोई बच्चा बताएगा कि दोनों में से स्ट्रेंथ कौन देता है, पेरेन्काइमा कि स्क्लेरेन्काइमा? स्क्लेरेन्काइमा थिक वॉल्ड है, डेड है, उसका काम क्या है? सिर्फ स्ट्रेंथ देना। ठीक है, जिसने आंसर दे दिया वो सीट पे। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, जो इतनी हवा आती है, तूफान आते हैं, ब्रांचेस कुछ टूट भी जाती है पर कुछ झूलती रहती है, किसकी वजह से? कोलेनकाइमा, बिल्कुल ठीक है। और कोलेनकाइमा क्या है? लिविंग सेल्स है, ऐसे ही है, बट इनके पास थिकनिंग्स है कुछ, कई कई जगह, हर जगह नहीं, सिर्फ कॉर्नर्स में थिकनिंग्स है। ओके, इस तरह पेरेन्काइमा में कोई थिकनिंग नहीं है, स्टोरेज ऑफ फूड। कोलेनकाइमा में कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे तो बहुत थिक वॉल्स है, लिग्निन है वॉल्स में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बैठो बेटा। नेक्स्ट रोज। हाँ जी, रोज में बेटा यहाँ पे गर्ल्स, गर्ल्स में लास्ट बेंच पे जो गर्ल बैठी है, ब्लैक शर्ट, आई होप आ जाओ, दोनों आ जाओ गर्ल्स, बोथ गर्ल्स कम नियर माइक। हाँ जी बेटा। फर्स्ट फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, सेवंथ का मैंने बता दिया, सेवंथ इज कोलेनकाइमा ए, सेवंथ इज ए। एट का बताइए आंसर बेटा। यस, रोज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्क्लेरेन्काइमा, अभी बताया है, वेरी गुड। नेक्स्ट गर्ल, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, बताओ कौन सा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट। अगर ये परमानेंट नहीं है तो क्या है ये? क्या? हाँ, ठीक करो इस सेंटेंस को। दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बिल्कुल ठीक है। सो नाइन्थ इज सी, क्या गलत है? बैठो बेटा, वेरी गुड, गो टू योर सीट्स। कि एपिकल एंड इंटरकैलरी आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट लोटस, लोटस में बेटा यस, गर्ल्स के पीछे जो बैठ, देयर इज वन मोर गर्ल, आजा बेटा, खड़े हो जाओ, आजा आजा माइक के पास आ जाओ। वन गर्ल और टू गर्ल्स बोथ कम। सेकेंड बेंच पे जो है, आ जाओ आ जाओ। वर्कशीट नहीं है तो किसी से ले लो, किसी से ले लो, अगर वर्कशीट नहीं है तो टेक द वर्कशीट फ्रॉम समबडी। ठीक है, और क्वेश्चन है पेरेन्काइमा सेल्स आर, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। पेरेन्काइमा सेल्स आर एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज लाइक, ऑल ऑफ दिस, कंडक्शन, स्टोरेज, डी डिफरेंशिएशन, इट इज ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है। 10th का डी। देखो अब असिमिलेशन क्या चीज है एवरीबडी? अच्छा पहले मुझे 11th का भी आंसर बता दो, फिर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी, दोनों लड़कियां बैठ गई, एक तो आंसर देना था क्वेश्चन नंबर 11 का, बोलो। यहीं से जोर से बोलो। वाइट, जोर से। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है, इट इज बी, 11th का बी। हम थोड़ा सा 10th क्वेश्चन डिस्कस कर लें। 10th है पेरेन्काइमा सेल्स है, व्हाट इज एसिमिलेशन? यहाँ पे लिखो, एसिमिलेशन इज फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड, लिखो।
एसिमिलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड। और कौन कर रहा है? दैट इज क्लोरेनकाइमा। राइट डाउन। Photosynthesis or assimilation is done by chlorenchyma. And what is chlorenchyma? That is parenchyma cells having chloroplast. दूसरा है conduction and storage. Storage का आपको पता ही है, storage of food. Third है de-differentiation. Only parenchyma cells have the ability, regain the ability to divide. So it is all the above. The living element present in xylem is daffodil. डैफोडिल बेटा इधर से टुवर्ड्स वॉल जो है थर्ड बेंच पे, आई होप थर्ड है कि सेकंड है, दोनों बॉयज आ जाओ, मतलब रेड शर्ट एंड येलो शर्ट आ जाओ बेटा, वर्कशीट लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 12, the living element present in xylem is yes, it is xylem parenchyma. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बॉय, the cork cells are impervious to water and gases due to presence of C, सुब्रिन। सुब्रिन वैक्सी सब्सटेंस है, बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, सेम क्लास में से बेटा मिडल रो में सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स है, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। फंक्शन ऑफ क्यूटिकल या वैक्सी लेयर है ना, यहाँ पे हम कहते हैं दिस इज एपिडर्मिस और इसके बाहर है क्यूटिकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्यूटिकल? इट इज, देखो सबसे पहले तो बेटा सबसे डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सो सबसे पहले तो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, सबसे पहले तो लॉस ऑफ वाटर, वैक्सी लेयर है ना, और उसके बाद प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी, प्रिवेंट्स इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स, वो ये सब ठीक है, बट मेन जो है वो फर्स्ट है, बट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए जरा, असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? In desert plant cuticle is very thick, yes or no? क्यूटिकल देखो, इधर सामने देखो बेटा, सामने देख स्क्रीन की तरफ। क्यूटिकल का फंक्शन होता है वाटर लॉस को बचाना मेनली। तो क्या डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल होगी कि नहीं? यस, ट्रू स्टेटमेंट है। इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। ट्रू और फॉल्स? True, but reason does not explain assertion. Both assertion and reason true, but reason does not explain assertion. So question number 15. बैठो बेटा, question number 15 B. B के आगे लिखो assertion correct, reason correct, but reason does not explain assertion. Reason does not explain assertion. Question number 16. Sunflower. Sunflower में बेटा yes, towards window, right side में जो सेकंड रो पे बच्चे बैठे हैं वो दोनों आ जाओ, लास्ट सेकंड बेंच पे आ जाओ, राइट साइड पे, अपनी राइट साइड पे, आप लोगों की जो राइट साइड है, चलिए। Cork is formed by secondary meristem. True की false? जोर से बोलो बेटा। Cork is formed by secondary meristem. True है कि false है? True है। Secondary meristem is formed by de-differentiation of parenchyma cells. True or false? ये ट्रू है बेटा, एंड ऑप्शन ए है ये, parenchyma cortex is parenchyma cells. So assertion, reason both correct and reason explain assertion. ठीक है, नेक्स्ट गर्ल जल्दी से। What are the function of lenticels? जल्दी से बताओ।
हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल ठीक है, बैठिए बच्चे। कॉर्क हैज थिक वॉल्ड सेल्स, नेम द केमिकल विच फॉर्म द थिक सेल्स ऑफ कॉर्क। इट इज सुब्रिन, लिख लो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 का ए जो पार्ट है वो है, 17 का ए पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बी पार्ट है दैट इज सुब्रिन, एंड सी पार्ट है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद लेबलिंग करो, बुक देखो, खुद लेबलिंग करो। जो फर्स्ट है ऊपर एपिडर्मिस, सेकंड है कॉर्टेक्स, थर्ड आ जाता है बेटा फ्लोइम, थर्ड इज फ्लोइम, फोर्थ जाइलम, फिफ्थ पिथ। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड कॉर्टेक्स, थर्ड फ्लोइम, फोर्थ जाइलम, फिफ्थ पिथ, PITH। ठीक है, हम अगली बार फिर समझाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू एनिमल टिश्यूज। ठीक है जी बेटा, ओके, थैंक यू। एंड जल्दी से मैथ्स का आ जाइए फटाफट, ट्राइंगल्स का बेसिक करने आ जा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, आज हमने ट्राइंगल्स करना है। किया क्लास में, थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ क्लास में ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है, उस पे बात करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये है हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। हाँ जी, कौन बताएगा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग, यस लोटस, लोटस नंबर 2। कॉन्ग्रुएंट कब होती है बेटे हमारे पास? ऑल साइड था ऑल साइड, ये क्राइटेरिया है। अच्छा, मैंने क्राइटेरिया नहीं पूछा, मैंने जस्ट वैसे ही पूछा कि अगर मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल छोड़ो, कोई भी दो डायग्राम्स हैं, मैंने कहा ट्रायंगल नहीं हम लेते हैं, चलो रेक्टेंगल लेते हैं।
मेरे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, अब बताओ ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? When it's all sides same to second rectangle. दोबारा बताओ बेटे। When it's all sides the same to second rectangle. साइड सेम। हम लेते ही नहीं, हम साइड ही नहीं लेते। हम लेते हैं सर्कल। ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? Shape is equal. दोबारा बताओ। Shape is equal. शेप तो सर्कल की सर्कल ही रहेगी, और तो शेप कुछ हो नहीं सकती। और कुछ Shape is equal to second circle. एंड साइज आर इक्वल। साइज भी होता है ना, रेडियस पे डिपेंड कर जाता है साइज। रेडियस क्या है सर्कल का? तो फर्स्ट ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होती है जब हमारे पास शेप एंड साइज इक्वल होता है। ट्रायंगल या जो भी डायग्राम है आपके पास, एक क्लोज फिगर की बात करते हैं। जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो फिगर है वो क्लोज होनी चाहिए, ओपन नहीं होती। ठीक है, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोई भी कोऑर्डिनेटर, कोई भी पॉलीगन जो क्लोज है आपके पास, वो कॉन्ग्रुएंट कब होती है? हैविंग ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होगी अगर उसका साइज और शेप सेम होगा। अगर मैंने कहा मेरे पास दो सर्कल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दोनों सर्कल हैं तो शेप तो सेम है। कॉन्ग्रुएंट होंगे जब हमारे पास उनका रेडियस सेम होगा, तो साइज भी सेम हो जाएगा। अगर रेडियस सेम होगा तो ये हमारे पास क्या होंगी? ट्रायंगल्स आर सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो जाएंगे बेटे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट में, गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। दूसरी चीज हम कॉन्ग्रुएंट में कहते हैं कि हमारे पास जो भी दो डायग्राम्स हैं, अगर वो सेम शेप की हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए। जैसे आपकी मैथ की बुक्स मोस्टली वो सेम ही होती है। मोस्टली क्या, अगर मैं एनसीईआरटी की बुक ले लूं दो मैथ की आपकी, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप मीन्स अगर मैं एक के ऊपर दूसरी रख दूं तो वो नीचे वाली दिखाई नहीं होगी, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो भी नीचे वाली दिखाई नहीं देगी। ओवरलैप, एक दूसरे को कवर कर लेती है दोनों बुक्स। ठीक है, तब भी वो हमारे पास डायग्राम जो बनती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया तो बाद की बात है, तो वो तो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करते हैं ना, क्राइटेरिया देखते हैं उसके कॉन्ग्रुएंट होने के। अगर हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, तो बेसिक कंसेप्ट कहता है कि पहले तो हम कहते हैं उसकी साइज और शेप सेम आना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, दूसरा हम कह देते हैं कि वो जो दो डायग्राम्स है हमारी, जो दो फिगर है क्लोज फिगर, वो एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए। मैंने वर्ड यूज किया ओवरलैप। क्लोज फिगर overlap each other। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नीचे छोटी बुक रख दी ऊपर बड़ी बुक रख ली, भाई नीचे वाली तो दिखाई नहीं दे रही तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा नहीं होता। दोनों ही अगर उल्टा करके रखो तो तब भी नीचे वाली जो अब नीचे हुई है वो भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तब हम कहते हैं वर्ड ओवरलैप, ओवरलैप ईच अदर। क्लियर है? क्लियर है बेटे? क्लोज फिगर होती है तभी आप कॉन्ग्रुएंट करते हो, ओपन डायग्राम नहीं होती है हमारे पास। क्लोज फिगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये जाएगी, दूसरी कंडीशन आपकी ये जाएगी। इसके बाद ट्रायंगल्स है, इसलिए उसका क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं। इतना डन है? समझ आ गया? किसी ने कुछ पूछना है इसमें? यस रोज? क्लियर है बेटे?
अगर क्लियर है हैंड रेज करो बेटे, अगर सबको समझ आ गया। डैफोडिल, सनफ्लावर, लोटस। नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। डैफोडिल, डैफोडिल आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो बेटे नीचे कर लो, पूछ सकते हो। क्लियर है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट आपको समझ आ गया तब हम पहुंचते हैं ट्रायंगल पे, कि ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तब हम क्राइटेरिया, हर टाइम हम उनको उठा के थोड़ी ऊपर रखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्राइटेरियाज बने होते हैं, तो क्राइटेरियाज की बात करते हैं। कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो? ठीक है, हाँ जी, दो ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्राइटेरिया की बात करते हैं। नाम दे देते हैं इनको, ए बी सी, पी क्यू आर। मैंने कहा एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। पहला क्राइटेरिया कौन बताएगा? डैफोडिल। यस बेटे, डैफोडिल रोल नंबर 1। एस एस एस, ठीक है। साइड साइड साइड, एक क्राइटेरिया हमने लिया। अब मैंने कहा इसको देखते हैं। मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्लियर? मैंने एस एस क्राइटेरिया ले लिया। अब मैंने कहा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे मुझे नाम बता दो। पी क्यू आर आएगा, क्या आएगा हमारे पास? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, बोलो पी आर क्यू, राइट, पी आर क्यू। थैंक यू बेटे, गो टू योर सीट। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? जो साइड जिसके इक्वल है वही साइड सामने आनी चाहिए। ए बी, हमने कहा ए बी इज इक्वल टू पी आर, तो यहाँ पे साइड ए बी के साथ पी आर आ रही है। और हमारे पास बी सी, जो साइड बी सी है वो किसके इक्वल है? बी सी क्यू आर, तो ये रहा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइड है ए सी, ए एंड सी किसके इक्वल आएगी? पी क्यू, ये रहा, ठीक है। जैसे हमें साइड्स दी हैं प्रेजेंटेशन वैसी ही जाएगी क्राइटेरिया के हिसाब से, उल्ट नहीं लिखोगे। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, गिवन ये है, और लिख दिया पी क्यू आर, तो बेटे ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। हमें जैसे क्राइटेरिया दिया होता है, जो साइड जिसके इक्वल है वैसे ही प्रेजेंट करके आना। क्लियर है? ये चीज क्लियर है सबको? क्राइटेरिया की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया है, कौन बताएगा? सनफ्लावर रोल नंबर 2, सनफ्लावर रोल नंबर 2।
लोटस, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है बेटा, मुझे इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप बोलो। आप SAS SAS साइड एंगल साइड, ठीक है ठीक है। कटियर के हिसाब से चलते हैं। साइड एंगल साइड, मैंने कहा मेरे पास साइड BC इक्वल टू PR है, AC इक्वल टू PQ है, और एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, ठीक है। मैंने लिख दिया ट्रायंगल ACC। अब बताओ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ जी, बताओ बेटे। प्रज्वल बोलो। PQR, ओके। यस, सनफ्लावर रोल नंबर 3। बेटे आप जाओ सीट पे। रोल नंबर 3, ये सही है क्या गलत है? तो सही बताओ, सही बताओ। ओके, हाँ वेरी गुड, ठीक है ठीक है बेटे। ये देखो हमें गिवन है A के बाद क्या आ रहा है C, और जो एंगल इक्वल दिया है वो टू यू सी बेटे, वो C ही दिया हुआ है। C एंगल किसके इक्वल है? C एंगल P एंगल के इक्वल है। जब हमें एंगल दिया हो तो फोकस हम एंगल पे कर लेते हैं। C कहाँ दिया हुआ है? C मिड में दिया हुआ है, तो C के इक्वल P है, P को भी मिड में लोगे। चलिए अब हम कैसे जा रहे हैं? A to C जा रहे हैं। यहाँ से जो यहाँ मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, वो वाली लाइन, ठीक है। तो ये वो लाइन है A इक्वल टू PQ, ये तो दिख गया, लेकिन P मिड में चाहिए तो आप QC जाओगे। चलिए C जाओगे तो ये आ गया Q। अब एंगल बच गया R, ठीक है। क्लियर है बेटे? ओके, तो ये हमारे पास राइट है ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR, हाई साइड, ठीक है। नेक्स्ट कटिए, ये मैं कर दूं रेस। हाँ जी, नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन बताएगा? रोज, रोल नंबर 4। यस बेटे।
ओके, ए एस ए, ठीक है। वैसे मुझे सुन गया था, किसी और ने बताया, उसके बाद आपने बताया, है ना। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल साइड एंगल के हिसाब से चलते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है आपके पास। अब हम ले रहे हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और हमारे पास साइड क्या आ गई फिर, बी सी इक्वल टू सी क्यू। जो एंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यस बेटे, यस बेटा। आवाज नहीं, जोर से बोलो। एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, अच्छा, जिसने आपको ये क्राइटेरिया बताया था ना बेटे, उसी को खड़े करो, खड़े हो जाओ, रोज, यस। बताओ ये सही है कि गलत है, सही बताओ फिर अगर गलत है तो। आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू। देखो हमारे पास मैंने कहा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ तो बीच में, यहाँ तो बी बीच में, आर क्यू पी, क्यू, ठीक है, ये पी, आर क्यू बी, क्लियर। पी के साथ एंगल क्यू आएगा। जब आपको एंगल दिए हो तो मच इजी हो जाता है लिखना, पहले एंगल को पकड़ना होता है, एंगल के हिसाब से चलो। अगर मैंने ए बी सी लिया है तो हमारे पास बी एंड सी की बात कर रहे हैं जो इक्वल एंगल है। बी सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे बी के साथ क्यू इक्वल है, तो क्यू को सेकंड नंबर पे लिखोगे। उसके बाद सी किसके साथ इक्वल है, सी पी के साथ इक्वल है, तो पी आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। बचा क्या, आर, आर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है। सिट डाउन बेटे, गो टू योर सीट। सबको क्लियर है बेटे कैसे लिखना है क्राइटेरिया, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू पी, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया, लोटस रोल नंबर 6, लोटस रोल नंबर 6। पहले पहले पिक्चर लगाने ना मैंने, क्राइटेरिया बताओ। आर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बनेगी, ये वाली ट्रायंगल नहीं बनेगी, बनेगी तो ट्रायंगल, हम ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं इसके लिए फिर।
लोटस, लोटस, आपसे आपकी क्लास से बेटे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी, A B C P Q R, मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल अब बना दिए हैं, नाम वही रखे हैं A B C एंड P Q R। देखो ये राइट एंगल है तो ये तो हम छेड़ ही नहीं सकते ना, ये तो इक्वल होगा ही होगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा मीन ये साइड इसके इक्वल होगी, RHS ले रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज तो लेना ही पड़ेगा। एक साइड, चलो हम साइड लेते हैं BC एंड QR। तो अब मुझे बताओ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यस बेटे बताओ। लोटस, रोल नंबर 6 था 7 था? हाँ जी, ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, PQR, ठीक है, वेरी गुड। ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अब आप सबको देखना तो आ ही गया है, B के साथ Q जाएगा, वो बीच में आ गया। उसके बाद हमें AC चाहिए, A एंड C। अगर साइड की बात करें तो कॉर्नर पे पड़ी है AC, साथ में इक्वल आएगा PQ। क्लियर, क्लियर बेटे। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय क्राइटेरिया RHS। सिट डाउन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्राइटेरिया कर दो ना, इरेज कर दो बेटे, ये भी इरेज कर देते हैं। अब जो क्राइटेरिया से हो जाएगा, लास्ट बचा है हमारे पास। हाँ जी, कौन बताएगा? डैफोडिल, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7। एंगल, एंगल साइड, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नहीं, गलत बना लिया ना मैंने, ये नहीं आएगी। यही आएगा। हाँ जी बताओ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, या फिर R R RQP, ठीक है, वेरी गुड। RQP, गो टू योर सीट। अच्छा रुको एक मिनट और रुको, तो मुझे ये बताओ, क्या साइड साइड एंगल क्राइटेरिया है हमारे पास? क्या अगर मैं साइड साइड एंगल क्राइटेरिया लूं तो मेरे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? जरा बोलो जोर, आवाज नहीं है। आगे लड़के बैठिए, इन्हीं को बोलो सबसे बताओ बेटे, क्या ये साइड साइड एंगल क्राइटेरिया होगा? या गर्ल्स बैठी है जो आगे, गर्ल्स इससे ज्यादा आवाज आ नहीं रही है आज,
डिस्टर्बेंस ज्यादा है। बोलो बेटे प्लीज। मेरे अंदर वो है, ये क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। साइड साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं होता। अगर साइड साइड एंगल लोगे तो हमारे पास कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, क्योंकि उनकी साइज में चेंज आ जाता है। हम उनका साइज चेंज कर सकते हैं। ये आपका लास्ट क्राइटेरिया है। एक तो ये क्राइटेरिया नहीं है, साइड साइड एंगल, ये भी हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है। एक क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल, ये इससे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। यस बेटे, इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। आप जाओ सीट पे, आवाज ही नहीं आती। रोल नंबर 8, रोल नंबर 8। यस बेटे बताओ, क्या क्राइटेरिया से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है? नो। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ठीक है, बट ये आगे जाके जब आप पढ़ोगे, 10th में पहुंचोगे तो ट्रायंगल सिमिलर का कंसेप्ट आएगा। एंगल से ट्रायंगल सिमिलर होती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, क्योंकि उनका साइज चेंज हो सकता है। जब हम एंगल क्राइटेरिया लिखते हैं तो हम साइज चेंज कर सकते हैं, अगर तीनों एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के साथ इक्वल रख भी दें कभी, ठीक है। ये क्राइटेरिया नहीं है, ये 5 क्राइटेरिया है। गो टू योर सीट बेटा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये डन हो गया हमारा। डायग्राम बना रही हूँ मैं, साथ में बनाते जाना और मुझे आप लोग आंसर करना है। ट्रायंगल है मेरे पास डी आई EF is equal to angle is equal to angle 1 is equal to take the postulate or theorem that can be used to conclude triangles are कौन सी ट्रायंगल? आई। हाँ जी, और रोल नंबर 9 सनफ्लावर, रोल नंबर 9। यस ये जो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी और कौन सा क्या होगा? देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है GF इक्वल टू, ये आपको ठीक है। और क्या गिवन है हमें? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। क्या कौन सी और क्या है इसमें? तो जी दिख रहा है, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है,
GI कौन है? GI जो क्या है? हमें क्या मिल गया? GFI congruent to triangle बताओ क्राइटेरिया बताओ। हाँ बोलो। साइड एंगल क्लियर है बेटे? क्वेश्चन क्लियर है बेटे सबको? गो टू योर क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। ये साइड इक्वल, ये साइड कॉन्ग्रुएंट करना है। रोल नंबर 11 in the pink. आप बताओ डायग्राम में कौन सी डायग्राम दिख रहा है? आज नहीं आ रही। इसको हमें n O is equal to PQ given ये हमें डायग्राम में ये क्या आ जाएगा बेटे? Your voice is not clear. Yes. ये दिख तो रहा है ना? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कॉमन तो बेटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने S को तो हमारे पास जाएगा N ट्रायंगल Q क्लियर है बेटे? क्वेश्चन गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये साइड इक्वल है, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी ट्रायंगल हमारे पास क्या बेटे एंगल सी एक vertically opposite triangle congruent triangle दिया गया है सिंगल साइड एंगल ठीक है बेटे क्वेश्चन डालें बेटा बाय।